Hello, so today we will do the lesson The Bet by Anton Chekhov. Okay, so before we start, let us know a little about the author. Anton Chekhov was born on 1860, January 17, 1860. Okay, and he died in the year 1904. Okay, and he was a Russian playwright, we know, dramatist, playwright, and short story writer. So, you know, he wrote 17 plays and 600 stories while he was alive. तो इसलिए उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स कंसिडर किया जाता है ऑफ द लेट 19th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी. लेट 19th सेंचुरी एज इन 1850 to 1900 and early 20th century as in 1900 to 1950. Okay, so this period. His works are known for their subtle character development. Subtle character means exquisite, very beautiful character development के लिए उनके plays को, उनके works को जानते हैं हम लोग. Poignant observations of human nature. Poignant as in sad, depressed side part of the humans. उसके deep observations के बारे में we can understand through his works. And a blend of humor and melancholy. Okay. His works are also a blend of a mixture of humor and melancholy. Melancholy is also, it means sadness, okay, and humor, sarcasm. Chekhov's writings often explore themes of social isolation. उनके राइटिंग्स में सोशल आइसोलेशन भी हम लोग देख सकते हैं. सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है सोसाइटी में जो आइसोलेशन प्रेजेंट है, अकेलापन, दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाई रीडिंग हिज वर्क्स. Disillusionment as in disappointment and the complexities of human relationships. Human relationships are the most complex things in the entire history of human civilization. मतलब human relationships are the most complex things, ठीक है, to understand. He is a master of short story form, known for his economy of language and ability to create vivid and memorable characters in just a few pages. So he is famous for what? He's famous for the economy, richness of his language, how rich his language is, and his ability to create vivid and memorable, vivid as in clear and memorable characters in just few pages. Okay, so he's famous for his writings and his keen and deeper level of understanding on human relationships, social isolation, okay, and these poignant observations of human nature, okay, melancholy, humor, character development, etc., etc. Now before we start, let's know a little about the text. The Bet explores several complex themes including, ठीक है, ये जो Bet है ये क्या क्या एक्सप्लोर करता है, किन किन एरियाज को एक्सप्लोर करता है, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का नेचर, ओके, फ्रीडम, लिबर्टी, आज़ादी, इसका नेचर एक्सप्लोर करता है ये चैप्टर. द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ आवर सर्वाइवल ऑन दिस प्लानट, वाई आर वी लिविंग हियर. And the value of material wealth, all the materialistic things that are present, this car, house, ठीक है, money, ये सब का क्या value है. The story raises questions about what truly constitutes a fulfilling existence. Okay, हमारा जो fulfilling existence है उसका भी क्या value है, ये पूरा story इस पर सवाल उठाता है, question उठाता है. Is it physical freedom, ठीक है, हमारे existence का जो पूरा value है वो क्या physical freedom से मिलेगा, या इंटेलेक्चुअल परस्यूट आ जाने से हमें अपने एग्जिस्टेंस का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिचेस अगर एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है इस लाइफ का, ठीक है. Chekhov uses the extreme situations of the Bet to examine the psychological impact of isolation, ठीक है. What all Chekhov uses? Extreme situation of the Bet, ठीक है. एक बेट के थ्रू हम लोग इस पूरे चीज़ को, इस पूरे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अकेलापन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे दिमाग पे, हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बेट के थ्रू समझेंगे. व्हाट इज़ अ बेट? बेट इज़ अ बाजी, ओके, चैलेंज, उसके थ्रू. एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नॉलेज, और कैसे, और इसको भी समझेंगे कि कैसे नॉलेज इकट्ठा करने से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. Okay, if you are studying, if you are collecting knowledge, gaining knowledge every day, how you will transform as a human being, ये भी हम लोग समझेंगे through a bet. The story also delves into the themes of pride, regret, and ultimate contempt for worldly possessions when faced with existential questions. Okay, ये play और भी किन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, प्राइड को एक्सप्लोर करता है, ओके, घमंड एंड ऑल, रिग्रेट को, अफसोस,
एंड अल्टीमेट कंटेम्प्ट फॉर वर्ल्डली पोजेशंस, ठीक है, अल्टीमेट कंटेम्प्ट फॉर वर्ल्डली पोजेशंस विद एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, ठीक है, वर्ल्डली जो पोजेशंस हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोग इस बेट चैप्टर के थ्रू ही समझेंगे. ओके, द बैंकर्स इनिशियल एरोगेंस एंड द लॉयर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द बेट. जो ये इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर होते हैं, बैंकर, ओके, एंड लॉयर. सो द बैंकर्स इनिशियल एरोगेंस, इनिशियल यानी कि पहला जब बैंकर एरोगेंस अपना दिखाता है, एंड लॉयर जो उस एरोगेंस को एक्सेप्ट करके लॉयर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द बेट, उस बेट को एक्सेप्ट करता है. But both stem from a certain kind of pride which is ultimately challenged and overtuned by the lawyer's profound transformation. Okay. Both the banker and the lawyer, due to their pride, उनके घमंड, उनके प्राइड के वजह से अपना एरोगेंस बैंकर दिखाता है बेट दे के, एंड लॉयर उसी प्राइड के थ्रू उस एरोगेंस उस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है. बोथ आर शोइंग देयर प्राइड हियर विच इज़ अल्टीमेटली becoming the result of the transformation of whom? The lawyer. Okay, lawyer की transformation में all these things helps. So the story leaves the reader pondering the true meaning of happiness. ठीक है, ये जो story है ये readers को किस बात पे आके किस conclusion पे लेके आता है कि what is the true meaning of happiness. खुश होने का असली मतलब क्या है, how we can stay happy, कैसे कोई खुश रह सकता है forever, and sacrifices people make in its pursuit. और खुश रहने के लिए इंसान क्या क्या सैक्रिफाइस करता है, क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसको वो सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो खुश रह सके और उसके आसपास के लोग भी खुश रह सकें. सो all these points are explored in the chapter Bet. Let us start. It was a dark autumn night. The old banker was walking up and down his study room and remembering how 15 years before he had given a party one autumn evening. There had been many clever men there, and there had been interesting conversations. Among other things, they had talked of capital punishment. The majority of the guests, among whom were many journalists and intellectual men, disapproved of the death penalty. They considered that form of punishment out of date, immoral, and unsuitable for Christian states. In the opinion of some of them, the death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment for life. ठीक है, अब ये स्टोरी स्टार्ट हो रहा है इन द प्रेजेंट टाइम से, ठीक है, और प्रेजेंट समय से बात कर रहा है. बैंकर जो है अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है. एक ऑटम की इवनिंग, एक ऑटम के नाइट में वो अपने स्टडी रूम में वॉक कर रहा है और क्या सोच रहा है कि 15 साल पहले उसने एक पार्टी रखी थी. ऑटम ही इवनिंग था वो भी उस दिन उसने एक पार्टी रखी थी. उस पार्टी के बारे में वो सोच रहा है और उस पार्टी में क्या हुआ था उस चीज़ के बारे में, ठीक है, प्रेजेंट में रह के. वहाँ पे बहुत सारे क्लेवर लोग आए हुए थे, बहुत बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी और उनमें इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस भी हो रहे थे. और उन सब में से एक टॉपिक ये था कि कैपिटल पनिशमेंट अच्छा होता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अच्छा होता है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है, इन दोनों का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी की सज़ा दे देना. मान लो अगर किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया तो वो उसे क्या फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देना चाहिए, यानी कि हमेशा के लिए जेल में उम्र भर कैद रहो, वो दे देना चाहिए, ठीक है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट थे, ठीक है, अमंग होम वर मेनी जर्नलिस्ट, जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी थे, जर्नलिस्ट थे. मेजॉरिटी जो लोग वहाँ पर थे ऐसे, उन लोगों ने डेथ पेनाल्टी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट को अप्रूव नहीं कर रहे थे. वो लोग उसके अगेंस्ट थे. वो लोग चाह रहे थे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही अच्छा होता है. वो लोग ये बात बोल रहे थे. दे कंसिडर्ड दैट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट, क्योंकि कैपिटल जो कि हमारा कैपिटल पनिशमेंट होता है यानी कि फांसी की सज़ा, डेथ पेनाल्टी, वो आउट ऑफ डेट हो चुका है उनके हिसाब से, ठीक है, और इमोरल भी है, बहुत ज़्यादा इमोरल है, मॉरल नहीं है. एंड अनसूटेबल फॉर क्रिश्चियन स्टेट्स, और क्रिश्चियन स्टेट्स में क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन स्टेट में थे तो इस हिसाब से डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा एक हार्श, एक इमोरल तरह का हमारा पनिशमेंट होगा. इसलिए वो लोग इन सब के खिलाफ थे, मेजॉरिटी वहाँ के लोग. बट इन ओपिनियन ऑफ सम ऑफ देम द डेथ पेनल्टी आउट टू बी रिप्लेस्ड एवरीवेयर बाय इम्प्रिजनमेंट, और उन सब के ओपिनियन के हिसाब से डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिप्लेस कर देना चाहिए. मतलब डेथ पेनल्टी की जगह क्या आ जाना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ो, इस तरीके का
सिस्टम आ जाना चाहिए। फिर जो होस्ट था वहाँ का बैंकर, उसने बोला नहीं नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, आई डोंट अग्री विथ यू। आई हैव नॉट ट्राइड ईदर द डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बट इफ वन मे जज अ प्रायोरिटी, द डेथ पेनल्टी इज मोर मॉरल एंड मोर ह्यूमेन दैन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो बैंकर क्या बोलता है, मैंने तो दोनों ही नहीं ट्राई किया, ना ही मैं डेथ पेनल्टी फेस कर चुका हूँ, ना ही मैंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट फेस किया है। पर अगर उसको एक तरीके से जज किया जाए, जितनी भी हमारी हिस्ट्री रही है, इम्पेरियल हिस्ट्री रही है, इम्पेरियल एविडेंसेस रहे हैं, उस हिसाब से अगर जज किया जाए तो जो डेथ पेनल्टी है ना, यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि जो फांसी की सज़ा है, वो ज़्यादा मॉरल है और वो ज़्यादा ह्यूमेन है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है इससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। तो ये कौन बोलता है, बैंकर बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस, ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ना, ये इंसान को एक ही बार में ख़त्म कर देता है, बट जो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है वो इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करता है, धीरे धीरे मारता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है। वाइल एग्जीक्यूशनर इज़ द मोस्ट ह्यूमेन, ही हु किल्स यू इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। जो एग्जीक्यूशनर जो तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर देता है, एक ही बार में फांसी पे लटका देगा और ख़त्म कर देगा, वो ज़्यादा ह्यूमेन तरीके से तुम्हें डेथ दे रहा है। एंड ही हु ड्रैग्स द लाइफ आउट ऑफ यू इन द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स, लेकिन जो कि तुम्हारे सोल से तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे करके निकाल रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा कहलाएगा, ठीक है। वो एक तरीके, यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे हैं, वो इन लोगों से बोल रहे हैं कि आप खुद बताइए, जो तुम्हें एक ही बार में मार दे, तुम्हें पेन ना हो जिसके मारने पे, वो ज़्यादा सही है या फिर वो ज़्यादा सही है जो कि तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी से निकाले, तुम्हें रोज़ मारे थोड़ा थोड़ा, वो सही है? आप ही बताइए, ऑडियंस से पूछा। बोथ आर इक्वली इमोरल ऑब्जर्व्ड वन ऑफ द गेस्ट्स। अब एक गेस्ट उन्हीं पूरे भीड़ में से बोला कि वो दोनों ही इमोरल है, ठीक है ना, वो सही है ना ये सही है, बट दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट टू टेक अवे लाइफ, ठीक है। व्हाट ही सेड इज दे हैव द सेम ऑब्जेक्टिव to take away life. Both the things will take away your life. So that is why both the things are immoral. The state is not God. This state is not God. This is not how humans should behave or act. Okay? It has not the right to take away what it cannot restore when it wants to. ठीक है? और इंसान को वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो कि वो वापस नहीं दे सकता, यानी कि लाइफ, किसी की लाइफ नहीं लेनी चाहिए जबकि वो उसके लाइफ को वापस नहीं दे सकता। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ये उन्हीं का काम है, वो लाइफ लेते भी हैं और वो लाइफ देते भी हैं, इसलिए ये चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ओके। अमंग द गेस्ट्स वॉज अ यंग लॉयर, उन्हीं गेस्ट में से एक यंग लॉयर भी था, अ यंग मैन ऑफ 5 and 20. ओके, 5 and 20 मीन्स 25. दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, very beautifully expressed. 5 and 20, you can also say if you're 26, if you're 22, you can say 2 and 20. Okay, you can say 6 and 20, इस तरीके से। When he was asked his opinion, he said, जब उस young lawyer से उसका opinion पूछा गया तो उसने क्या किया, उसने क्या कहा, the death sentence and the life sentence are equally immoral. दोनों ही चीज़ें equally immoral होती हैं, but if I had to choose between the death penalty and life imprisonment, I would clearly choose the second. To live anyhow is better than not at all. क्या वो बोलता है कि अगर मेरे पास चॉइस होता दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का, तो मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चूज़ करता। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से मर जाने से बेहतर है आप जिंदा रहो, ठीक है। भले ही आप जेल में रहो बट आप जिंदा रहो, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, अ लाइवली डिस्कशन अरोज, एक लाइवली डिबेट स्टार्ट हो जाता है उस पूरे रूम में। द बैंकर हु वॉज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोज डेज वॉज सडनली कैरीड अवे बाई एक्साइटमेंट, ही स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस्ट एंड शाउटेड एट द यंग मैन, ठीक है। अब इस चीज़ को देखकर वो जो यंगर था वहाँ पे कौन, बैंकर था, ठीक है। लॉयर थोड़ा सा उससे बड़ा ही था समझ लो एज में, और बैंकर जो था वो उससे यंगर था, तो वो इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाता है और अपने हाथ को फीस्ट बना के, दिस इज अ वे ऑफ शोइंग फीस्ट। ओके, व्हेन वी प्रोटेस्ट फॉर समथिंग, व्हेन वी रेज आवर हैंड फॉर विक्ट्री और समथिंग, दिस इज वी फीस्ट। ओके, वी आर फीस्टिंग, ये हो गया। तो वो फीस्ट बना के टेबल पे धम करके मार कर बोलता है, ठीक है, शाउट करके बोलता है यंग मैन की तरफ, इट्स नॉट ट्रू, आई बेट यू 2 million यू वुडंट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 5 years, ठीक है। वो क्या कहता है कि ये सही नहीं है, अगर तुम्हें मैं 2 million भी दूँ ना
तो और तुम्हें मैं कह दूँ कि तुम वहाँ पे 5 साल रह कर दिखाओ तो तुम नहीं रह पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, वो एक आइसोलेटेड सेल होगा, और अगर तुम्हें वहाँ रहने के लिए मैं 2 मिलियन भी दूंगा ना तो भी तुम वहाँ नहीं रह पाओगे 5 साल तक, ठीक है। इफ़ यू मीन दैट इन अर्नेस्ट, ठीक है, सेड द यंग मैन, आई टेक द बेट बट आई वुड स्टे नॉट 5 but 15 years. ओके, सो यहाँ पर बेट आता है हमारे स्टोरी में. सो दिस इज जस्ट वॉट हैपेंड. सो अब इस बात को सुन के दोनों के ही प्राइड में बात लग जाती है. वॉट द लॉयर सेज, अगर आप सीरियस हैं, इफ़ यू आर सीरियस, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, I will take the challenge, I will take the bet, and I will not just stay 5 years but 15 years. 15? Done, cried the banker. Gentlemen, I stake 2 millions. Okay? Now, banker भी घमंड में, lawyer भी घमंड में. अब banker क्या बोलता है? 15 years, fine, और मैं तुम्हें दूंगा 2 million रूबल्स, ओके, क्योंकि वहाँ पे रूबल्स चलता था, तो 2 million रूबल्स देने के लिए वो रेडी हो चुका है. Agreed, you stake your millions and I stake my freedom, said the young man. ठीक है. और अब क्या यहाँ पे बेट लगा, स्टेक यानी कि बेट लगता है किस चीज़ का, 2 मिलियन. एक तरफ है 2 मिलियन, एक तरफ है फ्रीडम, ठीक है. इन दोनों चीज़ों का बेट लगता है. अगर बैंकर जीतता है तो बैंकर पूरी तरीके से अपने पैसे को नहीं देगा, मतलब वो अपने 2 मिलियंस नहीं देगा लॉयर को, और अगर लॉयर जीतता है अपने फ्रीडम को देकर, बेट लगाकर, जेल में रहकर 15 साल, तो वो उस 2 मिलियंस को ले लेगा, ठीक है. इस चीज़ की बेट लगी थी. And this wild, senseless bet was carried out. The banker, spoilt and frivolous, with millions beyond his reckoning, and delighted at the bet. At supper, he made fun of the young man and said, "Now, and this wild, senseless bet was carried out." और अब ये bet carry out होने वाला था, और हो रहा भी था. The banker, spoilt and frivolous. Okay, frivolous means light-hearted, to the point of being a bit little silly. तो जो बैंकर था ना, वो थोड़ा स्पॉइल्ड फील कर रहा था और थोड़ा सा फ्रिवोलस भी फील कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कूल बन रहा था. इतना तो बाजी लगा दिया है, बट कहाँ से लाएगा इतना पैसा, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा कूल बन रहा था, दिखा रहा था कि हम बहुत ज़्यादा कूल हैं, हंस रहा है बैंकर के ऊपर, बट वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहा था, सिली लग रहा था, ठीक है. तो डिनर के समय में, एट सपर ही मेड फन ऑफ द यंग मैन, एज इन द लॉयर, ठीक है. क्या बोलता है? थिंक बेटर ऑफ इट यंग मैन वाइल देयर इज स्टिल टाइम. टू मी 2 millions are trifle, but you are losing 3 or 4 of the best years of your life. I say 3 or 4 because you won't stay longer. Don't forget either, you unhappy man, that voluntary confinement is a greater deal, harder to bear than compulsory. The thought that you have the right to step out in liberty at any moment will poison your whole existence in prison. I'm sorry for you. Okay? अब वो क्या कहता है? इस बारे में फिर से सोच लो यंग मैन, ठीक है. अभी भी समय है, ठीक है. देयर इज स्टिल टाइम. टू मी 2 millions इज नथिंग. मेरे लिए 2 millions ना कुछ भी नहीं है, बट तुम्हारे लिए 3 से 4 साल तुम्हारे लाइफ के बेस्ट साल जो है, तुम उसको स्टेक पे लगा के प्राइड में आकर इस जल्दीबाजी मत करो, ठीक है. मैं इसलिए 3 से 4 साल बोल रहा हूँ क्योंकि तुम उससे ज़्यादा रह ही नहीं पाओगे. इतना कॉन्फिडेंट था बैंकर, ठीक है. और ये भी मत भूलना, दुखी इंसान इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसको दुखी कंसिडर कर रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ खा पी के काम है नहीं, इसलिए इसने बेट लगा दिया है. अभी अपना 3 से 4 साल जेल में रहना चाह रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए उसको दुखी इंसान कह रहा है. कि वॉलेंटरी कन्फाइनमेंट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कंपल्सरी कन्फाइनमेंट से. यानी कि तो खुद से अगर कोई जेल में जाता है तो ये बहुत ही टफ स्टेप होता है किसी के लिए भी, पर अगर उसे कोई भेजता है जेल में तो उतना दर्द नहीं होता, उतना प्रॉब्लम नहीं होता. बट अगर इंसान खुद से जा रहा है जेल में तो उसे बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, उसको अपने डिसीजन पे बहुत गुस्सा आता है बाद में, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, बट बाद में वो कुछ नहीं कर पाता है. द थॉट दैट यू हैव द राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट विल पॉइजन योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन. और प्रिजन में जब तुम रहोगे और ये थॉट तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि मैं काश उस समय निकल गया होता, मैं काश इस समय बेड को तोड़ दिया होता, ये सारी बातें जब तुम जेल में रहकर सोचोगे ना, तो तुम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, सैड, डिसहार्टन फील करोगे, ठीक है. और तुम्हारे पूरा जो एग्जिस्टेंस होगा प्रिजन में वो वर्थलेस होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा. तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है. आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू. ओके. एंड नाउ द बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो रिमेंबर्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ. अब फिर से वो पास्ट की बातों को छोड़कर प्रेजेंट में आ जाता है. हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
ऑटम का एक रात था, वो इन सारी चीज़ों को सोच रहा है। स्टोरी की बिगनिंग ही ऐसे समय से हो रही है कि बहुत ही ग्लूमी, डार्क, सैड सा एक इन्वायरमेंट होकर रखा है। ऑटम का सीज़न हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटलेस सीज़न होता है, उसमें सारे लीव्स झड़ जाते हैं, फ्लावर्स गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे हरियाली कहीं नहीं दिखाई देती है, येलो येलो ट्रीज एंड एवरीवेयर, ड्राई लीव्स आर फॉलन आउट, dry leaves have we see dry leaves falling out everywhere. So all these things the banker is recalling out and remembering, and asked himself, the banker now he's asking himself, let's know what was the object of that bet. What is the good of the man's losing 15 years of his life and my throwing away 2 million? Can it prove that the death penalty is better or worse than imprisonment for life? No. It was all nonsensical and meaningless. On my part, it was the caprice of a pampered man, and on his part, simple greed for money. Okay? Now what he says, अब बैंकर इन सारी बातों को सोचकर क्या कह रहा है कि उस बेट का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, और क्या पॉइंट है उस इंसान का, उस लॉयर का अपने लाइफ के 15 साल जेल में बिताने का और मेरे 2 मिलियन रूबल्स को स्टेक पे लगाने का, बेट पे लगाने का, इन सब का क्या मतलब है? क्या ये इस चीज़ को, इस बात को प्रूव कर सकता है कि डेथ पेनल्टी बेहतर है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेहतर है डेथ पेनल्टी से? नहीं प्रूव कर सकता। ये सारी चीज़ें नॉन सेंसिकल लग रही थी उसको उस समय, ठीक है। वो क्या कहता है, इट वॉज ऑल नॉन सेंसिकल और मीनिंगलेस, ठीक है। मेरे तरफ से बस वो कैप्रीज था एक तरीके का, यानी कि एक सडन ऐसी फ्लक्चुएशन मूड में मैंने ऐसे कह दिया, और उसके तरफ से ग्रीड था शायद पैसे का, उसे बहुत ज़्यादा लालच थी पैसों की, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। 2 मिलियन सुनते ही जेल में रहने को रेडी हो गया। कितना नॉनसेंसिकल ये बात है। ये सारी चीज़ें वो अपने आप से पूछ रहा है, बातें कर रहा है वहाँ पे टू एंड फ्रो घूमते घूमते, ठीक है, अपने घर में। Then he remembered what followed that evening. It was decided that the young man should spend the years of his captivity under the strictest supervision in one of the lodges in the banker's garden. It was agreed that for 15 years he should not be free to cross the threshold of the lodge, to see human beings, to hear the human voice, or to receive letters in newspapers. Okay? अब इन सब बातों को वो खुद से पूछते हुए, याद करते हुए क्या सोच रहा है कि उस इवनिंग क्या और चीज़ें डिसाइड हुई थी, उस दिन और भी क्या चीज़ें डिसाइड हुई थी कि वो जो यंग मैन होगा वो अपने सारे जो 15 साल का उम्र है उसका जेल में बिताने का, वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में उस जेल में बिताएगा। कहाँ पर वो जेल होगा? वन ऑफ द लॉजेस, ठीक है, इन द बैंकर्स गार्डन। उस बैंकर्स गार्डन में एक सेल होगा, ठीक है, बैंकर के ही गार्डन में, वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। ये बातें अग्री की गई थी उस लॉयर से, ठीक है, कि वो उस लॉज के थ्रेशोल्ड को, चौखट को क्रॉस नहीं कर सकता। ना ही वो ह्यूमंस की आवाज़ सुन सकता है, ना ही वो ह्यूमन बीइंग से बात कर सकता है, और ना ही उनको लेटर्स दे सकता है या उनसे लेटर्स रिसीव कर सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता है वो। उसे क्या अलाउड था? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड थे, बुक्स अलाउड थे, और चिट्ठियाँ लिखना अलाउड था। किस लिए वो लेटर्स लिख सकता है? सिर्फ वाइन पीने के लिए, वाइन और स्मोकिंग के लिए वो लेटर्स लिख सकता है। By the term of agreement, the only relation he could have with the outer world were by the little window made purposely for that object. एक छोटा सा विंडो उसके जेल में, उसके सेल में बनाया गया था, सिर्फ वो वहीं से अपनी बातों को रख सकता है। और वो भी किस चीज़ के बारे में वो लेटर्स लिख सकता है? अबाउट वाइन एंड स्मोकिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो कह सकता है वहाँ से, ठीक है, या फिर और भी कोई इमरजेंसी की चीज़ होगी तो वो कह सकता है वहाँ से, एक छोटे से विंडो से। He might have anything he wanted. वो उसके पास वो कुछ भी जो वो चाह रहा था वो हो सकता था। बुक्स हो गए, जैसे कि म्यूज़िक, वाइन एंड सो ऑन, इन एनी क्वांटिटी ही डिज़र्व, और किसी भी क्वांटिटी में, कितने भी क्वांटिटी में उसको बुक्स चाहिए, वाइन चाहिए, ठीक है, उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें वो मंगवा सकता था वहीं से, ओके, कितनी भी क्वान्टिटी में। by writing an order but could only receive them through the window. बट उन सारी चीज़ों को वो उस विंडो से ही रिसीव कर सकता है, वो बाहर नहीं आ सकता, ना ही कोई उसको अंदर देने जाएगा, बाहर से ही उसे दिया जाएगा उस छोटे से विंडो से। बहुत ही छोटा सा विंडो बनाया गया था, ठीक है। द अग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर एवरी डिटेल एंड एवरी ट्रिफल, ओके। नाउ उस अग्रीमेंट में हर एक डिटेल्स और हर एक एवरी ट्रिफल, यानी कि ऑल द स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स, छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी उस अग्रीमेंट में रखा गया था और अच्छे से बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। दैट वुड मेक हिज इम्प्रिजनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी एंड bound the young man to stay there exactly 15 years, beginning from 12 o'clock to November, beginning from 12 o'clock of November 14, 1870. Remember, 12 o'clock November 14, 1870 में वो उस जेल में जाएगा, जो कि कब ख़त्म होता है?
12 o'clock of November 14, 1888, सॉरी 1885, इस डेट पे उसका जो बेट है वो ख़त्म होता है. ओके. द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू ब्रेक द कंडीशंस, स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट भी अगर वो करता है उस अपने कंडीशंस को ब्रेक करने का, अपने जो अग्रीमेंट को ब्रेक करने का, जैसे कि इफ़ ओनली 2 minutes बिफोर द एंड रिलीज्ड द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम 2 millions, अगर वो 2 मिनट पहले भी अपने जेल से निकल जाता है या फिर बैंकर से कह देता है कि मुझे निकालो, तो उसे 2 मिलियन नहीं दिया जाएगा. इतना स्ट्रिक्ट रूल्स. For the first year of the confinement, as far as one could judge from his brief notes, the prisoner suffered severely from loneliness and depression. ठीक है, पहले साल में वो क्या होता है, वो जो लॉयर होता है पहले साल में वो थोड़ा सा लोनलीनेस एंड डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था. पहली बार जब किसी को जेल होता है तो वो उसे तो बहुत ही अजीब लगेगा ना, वो इतने साल से हर तरफ ह्यूमंस देख रहा है, वॉइसेस देख रहा है, नॉर्मल मेरी तरह आपकी तरह लाइफ जी रहा है. अब अचानक से उसे जेल में रख दिया जाए, ठीक है, एक रूम में सिर्फ वो अकेला, कितना डरावना लग रहा है ये सोच कर भी. तो इस सारी चीज़ों से वो सफ़र कर रहा था, लोनलीनेस से, सॉलिटरी फीलिंग्स एंड व्हाट, डिप्रेशन से. उसको डिप्रेशन भी हो रहा था क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है, किसी से बात, इंटरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसे डिप्रेशन हो रहा है. ठीक है. एंड प्लस उसकी एज क्या थी, 25, ऑलमोस्ट माई एज. सो दिस काइंड ऑफ, इस उम्र में वी नीड समवन टू टॉक, ओके, एक्सप्रेस, एंड इन एवरीवेयर एवरीवन नीड समवन टू टॉक. ठीक है. The sound of the piano could be heard continually day and night from his lodge. पियानो की आवाज़ें आती थी उसकी लॉज से, दिन में भी रात में भी. He refused wine and tobacco. उसको वाइन एंड टबैको नहीं चाहिए थी. Wine, he wrote, excites the desires, and desires are the worst foes of the prisoner. And besides, nothing could be more dreary than drinking good wine and seeing no one. Okay? Wine क्या होता है ना, इंसान के अंदर डिज़ायर्स पैदा करता है, बहुत सारी हेलुसिनेशन होता है इंसान को. ठीक है. और ये जो डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, यही सबसे डेंजरस है एक प्रिजनर के लिए जो कि जेल में है, बंद है, उसके पास कोई नहीं है बात करने को, एक्सप्रेस करने को, वो डिज़ायर्स, एंड उसके लिए ये चीज़ें वर्स्ट हैं. ठीक है. एनिमी है उसकी वाइन, तो इसलिए वो वाइन नहीं पी रहा है. नथिंग कुड बी मोर ड्रेडी, इससे ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं हो सकता दैन ड्रिंकिंग वाइन एंड सीइंग नो वन, कि तुम आप पी लो, वाइन पी लो और आपको कोई ना दिखे. ठीक है. आसपास बातों को शेयर करने का, तो आप पागल हो जाओगे, खुद से ही बात करोगे. इसलिए वो वाइन नहीं पीना चाहता था. एंड टोबैको स्पॉइल द एयर ऑफ दिस रूम. ठीक है. टोबैको उसके पूरे रूम के एयर को स्पॉइल कर देता. इन द फर्स्ट ईयर द बुक्स ही सेंट फॉर वर प्रिंसिपली ऑफ अ light character novels with complicated love plot, sensational and fantastic stories and so on. ठीक है. पहले साल में क्या क्या था, पियानो था, नो वाइन एंड अल्कोहल, बुक्स थे जो कि नॉर्मल सेंसेशनल, फैंटास्टिक, रोमांटिक स्टोरीज वाले बुक हुआ करते थे. ठीक है. लाइट कैरेक्टर के नॉवेल्स होते थे एंड कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट के भी नॉवेल्स हुआ करते थे. तो ये पहले साल का इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है. इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज साइलेंट इन द लॉज. पियानो सेकेंड ईयर में बंद हो जाता है सुनाई देना. एंड प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर द क्लासिक्स. अब बुक्स कैसे आ रहे हैं, क्लासिक्स के बुक आ रहे हैं. ठीक है. रेलिवेंट इन एवरी एरा, हर एक एरा में क्लासिक्स पढ़ी जाती है. इन द 15 ईयर म्यूजिक वॉज ऑडिबल अगेन. ठीक है. सॉरी 15 नहीं, 5th. दूसरे साल में क्या हुआ था, पियानो बंद हो चुका था और क्लासिक्स की बुक मंगा रहा था वो और वही पढ़ रहा था. 5th ईयर में क्या होता है, फिर से पियानो की आवाज़ सुनाई देती है. एंड प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन. 5th ईयर में वाइन की डिमांड होती है. Those who watched him through the window said that all that year he spent doing nothing but eating and drinking and lying on his bed, frequently yawning and angrily talking to himself. ठीक है. जो भी उस prisoner को देख रहे थे, थोड़ा सा भी उसके ऊपर नज़र रख रहे थे, वो लोग क्या वहाँ पे कहते हैं कि all these years, इतने साल तक, 5 साल तक, वो जो prisoner है ना, वो क्या करता है, वो खा रहा है, वो पी रहा है वाइन और अपने बिस्तर पे सोया रहता है, फ्रीक्वेंटली यॉन करता रहता है, जमाई लेता रहता है एंड अपने आप से गुस्से में कुछ बातें करता रहता है. He did not read books. बुक्स नहीं पढ़ रहा है वो. Sometimes at night he would sit down to write. कभी कभी रात में वो बैठ जाता था लिखने के लिए कुछ भी. He would spend hours writing and in the morning tear up all that he had written. More than once he could be heard crying. रात में वो कुछ लिखने बैठता है, सुबह उठता है, उस चीज़ को लिखा हुआ को फाड़ देता है, फाड़ के फेंक देता है. एंड एक से ज़्यादा बार उसको सुना गया है पूरे दिन में रोते हुए. More than once he could be heard crying. ठीक है. क्राइंग, रोते हुए भी वो सुना गया है. In the second half of the 6th year, what happens? The prisoner began zealously studying languages, philosophy and history. ठीक है. Zealously as in devotedly,
in a very devoted manner. What he started reading philosophy. Philosophy is read when we read about philosophers, thinkers, writers, उनके opinions, ideas. Philosophy को वो पढ़ता है, languages को वो पढ़ने लग जाता है, history को वो पढ़ने लग जाता है. He threw himself eagerly into these studies, so much that the banker had enough to do to get him the books he ordered. वो इतना ज़्यादा पढ़ने लग जाता है कि बैंकर को अब चिंता हो जाती है कि वो इतने ज़्यादा बुक्स इतने कम समय में कहाँ से लाए. ठीक है, बहुत सारे बुक्स लाने पड़ते थे. In the course of 4 years, some 600 volumes were procured at his request. 4 साल में 600 वॉल्यूम्स उसने कंप्लीट कर दिए पढ़ के. It was during this period that the banker received the following letter from his prisoner. और इसी समय का बात है कि जब वो बैंकर अपने प्रिजनर से लेटर्स रिसीव करने लग गया था. क्या रिसीव किया था? माई डियर जेलर, आई राइट यू दीज लाइन्स इन 6 languages. Show them to people who know the languages. Let them read them. If they find not one mistake, I implore you to fire a shot in the garden. That shot will show me that my efforts have not been thrown away. The geniuses of all ages and all the land speak different languages, but the same flame burns in them all. Oh, if you only knew what unearthly happiness my soul feels now from being able to understand them. The prisoner's desires was fulfilled. The banker ordered 2 shots to be fired in the garden. अब वो क्या बोल रहा है? अब वो अपना एक टेस्ट चाह रहा है कि बैंकर ले. वो जेलर, मतलब वो उसको जेलर बोल रहा है क्योंकि उसने उसको जेल में डाला. कहता है कि डियर जेलर, मैं तुम्हें ये चीज़ें, ये लाइंस तुम्हें मैं लिख रहा हूँ, 6 लैंग्वेजेस में मैं लिखूँगा और तुम इस लैंग्वेजेस के नॉन लोगों को दिखाना. मतलब जिन भी लैंग्वेजेस में मैंने लिखा है और उन लैंग्वेजेस के बारे में जो लोग जानते हैं उन लोगों से ये लाइंस पढ़वाना. और अगर उनको एक भी गलती इसमें मिल जाती है, आई इम्प्लोर यू टू फायर अ शॉट. मतलब अगर उनको इसमें एक भी गलती नहीं मिलती है तो आप अपने गार्डन में एक गन चला देना, एक शॉट मार देना फायर का. ठीक है, दैट शॉट विल शो मी दैट माई एफर्ट्स हैव नॉट बीन थ्रोन अवे. और मुझे इस गन की आवाज़ को सुनकर समझ में आ जाएगा कि मैंने जो इतना एफर्ट्स डाला, इतने साल तक इतनी पढ़ाई की, इतने लैंग्वेजेस को समझा, वो एफर्ट्स मेरा वेन में नहीं गया, वो मेरा एफर्ट्स ख़राब नहीं हुआ. और द जीनियसेस ऑफ ऑल एजेस एंड ऑफ ऑल लैंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. जितने भी जीनियस हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया के, वो सब लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, पर उन सबके अंदर एक ही आग जल रहा है, एक ही फ्लेम जल रहा है, वो सबके अंदर सेम है. ओ इफ़ यू ओनली न्यू वॉट अनअर्थली हैप्पीनेस माई सोल फील. और अगर तुम्हें मैं बता पाता कि मैं कितना खुश हूँ अभी इन सारे लैंग्वेजेस पे कमांड पाके, इन सारे लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करके. तो ये पूरा लाइन उसने लिखा था इंग्लिश में, फिर 6 और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसने लिखा. और प्रिजनर जो होता है, उसका जो विश होता है ये वाला फायर सुनने का, शॉट सुनने का, वो फुलफिल हो जाता है क्योंकि उसने एक भी गलती नहीं की थी. बैंकर ने 2 शॉट्स मारे. ठीक है, गार्डन में एक नहीं 2 शॉट्स चलाए. देन आफ्टर द 10th ईयर, 10 साल के बाद, आफ्टर द 10th ईयर, ठीक है, द प्रिजनर सैट इमूवेबली एट द टेबल एंड रेड नथिंग बट द गॉस्पेल. नाउ अब क्या होता है, 10th ईयर के बाद वो अपने सीट पर से हिलना बंद कर देता है. वो अपने सीट पर बैठकर दिन भर क्या पढ़ रहा है? गॉस्पेल पढ़ रहा है. गॉस्पेल इज व्हाट? सो द गॉस्पेल इज द न्यू टेस्टामेंट का बुक्स. ठीक है, गॉस्पेल में फर्स्ट 4 बुक्स आते हैं न्यू टेस्टामेंट के. न्यू टेस्टामेंट इज व्हाट? ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट को मिला के बाइबल बनता है. सो द न्यू टेस्टामेंट था, वो पढ़ना वो स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, एंड ऑल दीज टेस्टामेंट्स, न्यू टेस्टामेंट एंड गॉस्पेल टेल्स अबाउट द लाइफ, अबाउट द टीचिंग्स, अबाउट द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो वो 10th ईयर में आके गॉस्पेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. इट सीम्ड स्ट्रेंज टू द बैंकर दैट अ मैन who in 4 years had mastered 600 languages, learned volumes, should waste nearly a year over one thin book easy of comprehension. Theology and histories of religion followed the Gospels. Okay, अब वो बैंकर के लिए एक बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात क्या था कि जो इंसान इतने साल तक, 4 साल तक ऑलमोस्ट, जिसने 600 वॉल्यूम्स पढ़ लिए लैंग्वेजेस के ऊपर और उस पर मास्टर भी कर लिया. नाउ अब वो बैंकर क्या सोचता है कि वो एक स्ट्रेंज सी उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि वो ये सोच रहा है कि जो इंसान 4 साल तक, ठीक है, 600 वॉल्यूम्स पढ़ चुका है एंड उन लैंग्वेजेस पे मास्टर भी कर चुका है, वो 1 साल तक की पतली सी थिन सी बुक पे इतना अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है. ठीक है, एक पतली सी थिन बुक थी कॉम्प्रीहेंशन की, उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है 1 साल से. ठीक है, थियोलॉजी एंड हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजन फॉलोड द गॉस्पेल. गॉस्पेल के बाद वो थियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स भी पढ़ने लगा. सिर्फ अपने क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में नहीं, वो डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ने लग गया. थियोलॉजी इज व्हाट? द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स. उन सब के बारे में अब वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बैंकर को एस्टॉनिशिंग लगा, शॉकिंग लगा कि ये क्या हो रहा है.